So, under these circumstances, I don't know how President Trump will be able to acquire, shall we say, conquer Gaza. Israel was supposed to do that for President Trump. So, I think that this whole idea is just one of those loose ideas, which has not really taken the ground reality into account. I don't know if President Trump is aware of the ground reality because he's in no position to dictate anything to President Putin, because on the ground realities in Ukraine are such that they have to respond to President Putin's demands for cessation of hostilities. President Putin has made it very clear that he will only stop the war if it can stop forever, and that means that if the security considerations or the security issues that Russia had raised can be addressed now and forever. Watch Federal Post. Bold and independent. Now, with all these changes, all these developments taking place, we see President Zardari making an official visit to China. And before him, our Interior Minister had a meeting with his Chinese counterpart. Amidst all these developments, how do you see these two countries coming into closer contact with each other? Well, look, let me sort of just take you back a little bit. Pakistan has, under the present setup, with the military playing a major role under General Asim Munir, since the time of General Bajwa, Pakistan has tilted very strongly towards the United States in terms of the international, shall we say, competition between the United States and China and Russia on the other. And there are unconfirmed reports that Pakistan has been supplying ammunition even to the Ukrainians for their artillery. Now, since Pakistan had taken such a strong stand, and Pakistan had slowed down the development of CPEC, because one of the main objectives of even the Biden administration was the containment of China. And we have seen that President Trump has now come in with even greater emphasis on this particular aspect of his foreign policy, containment of China. So they are going to put further pressure on Pakistan to not allow quick, easy access for the Chinese CPEC through Pakistan to Gwadar and that region. Since Pakistan was delaying and slowing down on this, there are a number of press reports, and I even witnessed one situation in which the Chinese ambassador had been invited to the Pak China Friendship Center, and the foreign minister, Mr. Ishaq Dar, made a statement which the Chinese strongly resented and refuted, where Mr. Dar said that our relations with China are so good that even when Chinese nationals are killed in Pakistan, China does not looks the other way, sort of. This is more or less what he had said, and Yes. China took great exception to that statement and said that no, not at all. For us, every Chinese is very important, and we are very perturbed by the lack of security for Chinese personnel in Pakistan who are working on CPEC. And following a number of incidents, China withdrew a number of their people who are working in Pakistan, and have been emphasizing that the security arrangements for the Chinese working in very far-flung areas on CPEC is inadequate. There are even reports, and not confirmed, that China has even offered to send their own security contingents to protect the Chinese. Pakistan has outright refused to accept that. So, and then on top of that, after Trump's election and now before his inauguration, Pakistan was bending over backwards to try and appease the new US administration under President Trump, and they sent
their defense minister, whom you just mentioned, Mohsen Naqvi, to Washington instead Interior of Minister. Yes, Interior Minister. the foreign minister, which is very, very peculiar. And Yes. the Interior Minister has no experience dealing with the power centers of Washington. And he was, according to the reports, thoroughly ignored and not invited to the inauguration. And he kept on popping up everywhere, trying to portray himself as if he knows some people over there. He visited one or two congressmen, and for the present government, the main agenda, the Pakistani government, the main agenda has been how to contain Imran Khan and his popularity. And lo and behold, even Congressman Joe Wilson tweeted that free Imran Khan, and another congressman also said something similar. कि 2018 में ये जो सेम पेज वाली डॉक्ट्रिन तो नहीं थी, वो नॉनसेंस, उससे वो चीज खुली और अब बहुत ज्यादा खुल के आपे से बाहर हो चुकी है। देखिए, अब सिविलियन कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं है, एंड आपकी अदालतें जो कुछ हद तक आजाद थी और खुद मुख्तार थी, अब उनकी वो आजादी और खुद मुख्तारी भी उनसे छीन ली गई है। अदालत अब कहने को है, बेसिकली वो एक मैनेज्ड सिस्टम है टोटली, जिसमें आपने ही जज लगाने हैं, आपने ही तय करना है कि कौन से मुकदमे कौन सा जज सुनेगा। तो इफेक्टिवली फिर तय आपने ये भी कर लिया ना कि फैसला क्या है, अंदाजा लगाए ना। देखिए, ये ऐसा नहीं है कि वो इंसान तब्दील हो गया है, वो ये भी कह रहे हैं ना साइड पे कि जनाब अगर नेगोशिएशन होगी तो असल ताकतों से होगी, इनसे नहीं होगी। तो इट्स नॉट लाइक ही डजंट वांट टू नेगोशिएट विद देम। असल ताकतें बता चुकी हैं, असल ताकतें बता रही हैं 9 मई की माफी मांगो। सर, आप भी बेहतर समझते हैं। देखिए, वो खुलकर आकर कह रहे हैं कि 9 मई की माफी मांगो हमसे। बेहतर समझता हूँ मैं, बिल्कुल बेहतर समझता हूँ, मगर एक तरफ यहाँ एक चीज समझिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो इमरान खान है, फुल स्टॉप, देयर इज नथिंग। एक कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी है पार्टी, वो पार्टी नहीं है, वो जमहूरी पार्टी नहीं है। हमारे यहाँ कोई जमहूरी पार्टीज नहीं है, जमात इस्लामी के अलावा पर है। अच्छा, मगर ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान फौज जो है वो जनरल हाफिज आसिम मुनीर नहीं, पाकिस्तान आर्मी है। दिस कंट्री हैज टू रन, और उस रनिंग के लिए जरूरी ये है कि इमरान खान जैसा शख्स ऑपोजिशन में ना हो, या अगर हो तो वो इतनी रेलेवेंस ना हो उसकी जितनी इस वक्त। आम इंतखाबात को 1 साल का अरसा हुआ जाता है। इंतखाबात से पहले गुज़श्ता साल ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है, जो अदालती बहरान है, जो आईनी बहरान है, जो माशी बहरान है, इंतखाबात के बाद इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन एक तो इंतखाबात जिस तरीके से हुए, एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। इंतखाबात के बाद खुद नताइज पर बहुत सी उंगलियां उठी, उसके बाद मखसूस नशस्तों का हसूल हो, पीटीआई एमएनएस का पीटीआई में शमूलियत का इशू हो। अब ये सब मामला चल ही रहे थे कि अहम आईनी और कानूनी इस्लाहात, कानूनी एतबार से भी मजीद पेचीदगियां, बहरान हमारे सामने आ गए। 26वीं तरमीम की सूरत में, अहम तैनातियों पर की गई कानून साजी की सूरत में, और अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि जजेस के अंदर एक तकसीम है। जजेस ये तकसीम खतूत की सूरत में मीडिया, अवाम, पाकिस्तान के सामने आ रही है। ये सारी सूरत हाल किस तरफ लेकर जा रही है हमें, आज हमारे साथ बहुत अहम मेहमान मौजूद हैं। इन सब अमूर पर बातचीत करने के लिए कानूनदान हैं राज अली साहब। हम वेलकम करते हैं आपको रियलिटी बाइट्स में। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी, आई एम वेल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत मेहरबानी आपकी, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर खैरियत। राज साहब, ये फरमाइएगा कि 1 साल होने को है इलेक्शंस को, और ये कई हलकों का दावा था जी कि इलेक्शंस जैसे भी होंगे, जो भी होंगे, लेकिन पहले के मुकाबले में जरा स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ये तो हालात मजीद से खराब तर होते जा रहे हैं। तो ये किस तरह आप सूरत हाल को देख रहे हैं? जनाब देखिए, मामला मेरे हिसाब से बड़ा सीधा सा है। जब भी हम कुदरत से लड़ते हैं या किसी भी नेचुरल प्रोसेस को, ऑर्गेनिक प्रोसेस को हम सबवर्ट करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, तो इंतशार बढ़ता है, केओस पैदा होता है। आप अगर शुरू कर लें पिछले साल से, तो फरवरी 8 को लोगों की विल को रिजेक्ट किया गया। उनके जो मुंतखब नुमाइंदगान थे उनको उनकी नुमाइंदगी करने से रोका गया, पार्लियामान में आने से रोका गया, इलेक्शंस में रिगिंग हुई, और उसके कॉन्सिक्वेंस में जो गवर्नमेंट वजूद में आई उसकी मॉरल अथॉरिटी थी नहीं और है ही नहीं।
और जो लोग उनको लेकर आए वो ही उनकी डोरियां खींच रहे थे। जब वो डोरियां खींचेंगे तो वो आगे से कठपुतली तो वही नाच नाचेगी जो नचाने वाला नचाएगा उसको। तो अब वो विल ऑफ द पीपल की बैकिंग उनको है नहीं, अपने हलकों में उन्होंने जवाबदेह वो है नहीं, तो वो जवाबदेह किसको हैं? वो जवाबदेह अपने पपेट मास्टर्स को हैं। उसके कॉन्सिक्वेंस में आप केओस शुरू करते हैं। फिर एक ऐसा इदारा जिसका बुनियादी तौर पे काम मुल्क की मईशत को संभालना नहीं है, मुल्क के इंतज़ामी मामलात को हल करना नहीं है, मुल्क की अदालती मामलात को हल करना नहीं है और मुल्क की सिफारतकारी को हल करना नहीं है, जब उस इदारे ने अपने काम करने के अलावा ये सारे काम करने शुरू करने हैं जिसकी ना उनको कोई ट्रेनिंग है, ना वो उसके लिए इक्विप्ड हैं, ना उनकी कोई कंस्टिट्यूंसी है, ना वो लोगों की पल्स पे उनका कोई हाथ नहीं, है, मैं ना कहता हूं कि आज का मसला तो नहीं ना है। देखें, ये जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये तो फिर वो बात निकलेगी, दूर तलक जाएगी। फिर 2018 के बाद भी वो कौन सी डॉक्ट्राइन मुश्किल जमाना आई थी, आप भी जानते हैं। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ जी। देखिए आज ही इत्तेफाक से आप आज ही इत्तेफाक इस तरह का लीजिए कि जो मैं अदालत में था और जो मौजूदा सेटअप है उसकी एक अहम शख्सियत की नुमाइंदगी कर रहा था और आज ही एक ऐसी शख्सियत की नुमाइंदगी कर रहा था जो पिछले निज़ाम में बड़े इम्पोर्टेंट थे। और उस इनफॉर्मल चैट जो हमारी हुई उसके अंदर उन्होंने बताया, पिछले निज़ाम वालों ने बताया कि जनाब हमने बड़ी स्पेस खोल दी उन लोगों के लिए जिनका काम ये नहीं था। और अब आलम ये है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के अंदर 3 फ्लोर्स पे अस्करी इदारे के लोग बैठे हुए हैं। अब आप कॉन्सिक्वेंस देखिए ना, आप होता ये है कि वो जिन बोतल से बाहर आता है वो वापस अंदर नहीं जाता, फिर वो और बड़ा होता जाता है। तो मैं बिल्कुल, ये आज का मसला नहीं है, बट जिस एक्सटेंट पे रिगिंग फरवरी में हुई है पिछले साल के, या जिस एक्सटेंट पे स्पेस कंसीड की है इस हुकूमत ने, उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और इसी तरह मैं उसी सांस में ये भी कहना चाहूँगा कि 2018 में ये जो सेम पेज वाली डॉक्ट्रिन तो नहीं थी, वो नॉनसेंस थी। वो उससे वो चीज़ खुली और अब बहुत ज़्यादा खुल के आपे से बाहर हो चुकी है। देखिए, अब सिविलियन कंट्रोल नाम की कोई चीज़ नहीं है एंड आपकी अदालतें जो कुछ हद तक आज़ाद थीं और खुद मुख्तार थीं, अब उनकी वो आज़ादी और खुद मुख्तारी भी उनसे छीन ली गई है। अदालत अब कहने को है, बेसिकली वो एक मैनेज्ड सिस्टम है टोटली, जिसमें आपने ही जज लगाने हैं, आपने ही तय करना है कि कौन से मुकदमे कौन सा जज सुनेगा। तो इफेक्टिवली फिर तय आपने ये भी कर लिया ना कि फैसला क्या आएगा। सबसे पहले मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि इन हालात में हमारे प्रेसिडेंट साहब चाइना में जाके दुनिया के इन तब्दील होते हुए हालात पे डिस्कस कर रहे हैं और फिर अपनी दोस्ती को, हमारे अपने ताल्लुकात को, पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप जो है वो जिस तरह से ट्रेडिशनली टाइम टेस्टेड है, डीपर देन ओशंस, हायर देन हिमालयस एंड स्वीटर देन हनी, इसी तरह से रहेंगे। तो प्रेसिडेंट जो शी है उनके साथ उनकी सबसे पावरफुल जो टीम थी वो चाइनीज के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ भी उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे। इससे ही साबित होता है कि पाकिस्तान की अहमियत, उसकी दोस्ती और हमारा ऑनगोइंग जो कोलैबोरेशन है जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक, वो मजबूत से मजबूत तर होगा। जी प्रेसिडेंट वाज वेरी अनइक्वोक, उन्होंने कह दिया कि हमारा जो पड़ोसी है वो चाइना है और ऐसा कोई मुल्क जो कि हजारों माइल हमसे दूर है वो कैसे हमारे करीब हो सकता है, या हम उसको कैसे प्रेफरेंस दे सकते हैं एज कंपेयर टू आवर। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गुलाम रसूल बलोच साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के। डिटेल तारुफ आपके साथ कराते हैं इनका। आजकल एडजंक्ट फैकल्टी के तौर पे काम कर रहे हैं सेंटर फॉर पॉलिसी एंड एरिया स्टडीज इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में। फॉर्मरली पाकिस्तान के सफीर रहे हैं बहुत से मुल्कों में, बट इम्पोर्टेंटली ही हैज आल्सो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर्स secretary at the Prime Minister's Secretariat and advised 4 Prime Ministers on foreign policy as well as on public policy in the social sector. बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब ज्वाइन करने के लिए। आपको आज तकलीफ इसलिए दी है कि सदर जरदारी का 5 रोजा सरकारी दौरा चीन का हो रहा है। जरा इस पे आप अपनी क्विक ऑब्जर्वेशन दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं अपने सवालों के साथ।
जी डॉक्टर साहब, ये मेरे ख्याल है एक तसलसल है पाकिस्तान और चाइना की हाई लेवल एक्सचेंजेस का। हमें पता है कि बहुत सारा ये एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान में भी कि जब कोई सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में आते हैं तो उनका पहला जो दौरा है मोस्ट लाइकली जो होता है वो चाइना की तरफ ही होता है। एक तो सिग्निफिकेंस वो है। सेकंड, मैं समझता हूँ उसकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस ये इसलिए ज़्यादा है कि इस वक्त जबकि दुनिया एक तसब्बुब का शिकार है, एक नई जहत आ रही है, एक नए टेक्टोनिक जो है वो चेंजेस आ रही हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो बनने लगा है, नया अमेरिका, न्यू प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसका अपना एक एजेंडा है, उसका अपना अंदाज है, उसकी अपनी फिलॉसफी है अबाउट हिज ओन कंट्री एंड अबाउट द वर्ल्ड। और ख़ास तौर पे चाइना के लिहाज से देखा जाए तो उसके एक ख़ास मखसूस स्ट्रैटेजी है जिसका हमें सबको अंदाज़ा है कि ये क्यों है कि अमेरिका इस वक्त एक एग्जिस्टिंग ग्लोबल पावर है और उभरता हुआ जो ग्लोबल पावर है वो चाइना है। तो उस लिहाज से वो जो सर्द जंग है जो कि टेक्नोलॉजिकल जंग में तब्दील होने जा रही है, ट्रेड वॉर में होने जा रही है, एंड ऑफ कोर्स ग्लोबल एंड जियो स्ट्रेटेजिक जंग में होने जा रही है, उनमें सबसे पहले मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है कि इन हालात में हमारे प्रेसिडेंट साहब चाइना में जाके दुनिया के इन तब्दील होते हुए हालात पे डिस्कस कर रहे हैं और फिर अपनी दोस्ती को, हमारे अपने ताल्लुकात को की रिएक्शन कर रहे हैं कि इन बदलते हालात के बावजूद पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप जो है वो जिस तरह से ट्रेडिशनली टाइम टेस्टेड है और जो हम मेटाफोर इस्तेमाल करते भी हैं कि डीपर देन ओशंस, हायर देन हिमालयस एंड स्वीटर देन हनी, इसी तरह से रहेंगे। तो ये सिर्फ लफ्ज़ी नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा मवाद भी है, एग्रीमेंट्स भी है और वही कुछ साइन हुआ है। जी राइट। और ये अल्फाज प्रेसिडेंट शी ने भी इस्तेमाल किए हैं, फौलादी दोस्त, हर मौसम के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं चीन और पाकिस्तान। तो ये जो इस वक्त आपने जिन डेवलपमेंट्स का इशारा किया प्रेसिडेंट ट्रम्प के आने के बाद, और वहां पे हमने देखा कि पहली विजिट यूनाइटेड स्टेट्स में वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब की हुई, तो उसके बाद ये एक इम्पोर्टेंट विजिट है और जिस किस्म का रिसेप्शन दिया गया प्रेसिडेंट जरदारी को ग्रेट पीपल्स हॉल में, वहां पे इट वाज अ फुल फ्लेज स्टेट सेरेमनी देयर। तो इसकी सिग्निफिकेंस इन डिप्लोमेटिक टर्म्स आप कैसे देखते हैं? व्हाट इज द मैसेज बीइंग सेंट आउट टू द वर्ल्ड थ्रू दिस रिसेप्शन पर्टिकुलरली? जी देखिए, डिप्लोमेटिक, क्योंकि हम तो पूरी जिंदगी इसी में रहे 35-40 साल, तो उसमें डिप्लोमेसी में एक तो कंटेंट होता है लेकिन सिंबोलिज्म भी बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरह से उस मेहमान सरबराह को रिसीव किया गया, कौन रिसीव करने गया। आई थिंक इस हालत में बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है कि सबसे बड़ा उनका सीनियर जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वो गए हैं रिसीव करने के लिए। उसके बाद जिस तरह से तवातर से उनकी जो वजीराई की गई है पब्लिक लेवल के ऊपर, ऑफिशियल लेवल के ऊपर, बैंक्वेट्स एंड गार्ड ऑफ ऑनर्स, एंगेजमेंट्स एंड फुल फ्लैज समिट लेवल टॉक्स जिसमें प्रेसिडेंट के साथ भी, उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, और खास तौर पे जो लोग देखिए, अहम चीज ये होती है कि आपके सामने कौन बैठे हुए। तो प्रेसिडेंट जो शी है उनके साथ उनकी सबसे पावरफुल जो टीम थी वो बैठी थी। इसी तरह से चाइनीज के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके साथ भी उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग बैठे हुए थे। इससे ही साबित होता है कि पाकिस्तान की अहमियत, जियो स्ट्रेटेजिक अहमियत, उसकी दोस्ती और हमारा ऑनगोइंग जो कोलैबोरेशन है जियो इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक, वो इंशाल्लाह आगे मजीद मजबूत से मजबूत तर होगा। उसके बरक्स जो कुछ हम मीडिया में पढ़ते हैं, इंटरनली भी कुछ कुव्वतें हैं जो इसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, और बैरूनी कुव्वतें तो हमें पता है कि जरूर है जो कि चाइना के साथ कंपटीशन में है, पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो आई थिंक फॉर दोस उन ताकतों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि नहीं, पाकिस्तान और चाइना स्ट्रेटेजिक
एक्टर्स हैं। इमरान खान और तहरीक इंसाफ अभी मार खाने के मूड बना चुकी है कि इवेंचुअली वन ऑफ द टू पार्टीज विल हैव टू बैक ऑफ। इमरान खान के साथ जितना कुछ ये कर सकते थे वो ये कर चुके हैं। एक चीज रह गई है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट भेज के उनको फांसी की सजा दे दी। इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन। एस्टैब्लिशमेंट या जो भी इस तरह का इदारा होता है ना, जो पावर सर्कल में होता है, जो बिहाइंड द डोर सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, वो एक अपॉर्चुनिस्ट इदारा। वो उसका मोटिव जो है वो अपनी पावर को होल्ड करना है। उसकी अना नहीं है, इंसान की अना है। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिससे आप लड़, वो इंसान अब ऑब्वियसली उसका कल्ट है, लोग उसको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, टू सम एक्सटेंट परहैप्स बड़ी पैशनेटली उसको वर्शिप भी करते। तो इमरान डजंट केयर कि क्या हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। देखे ना, ही इज ऑलरेडी इन जेल, ही हैज, एंड बड़ी मतलब मुझे बड़ा अफसोस है इस बात के जरदारी साहब जो हैं, जिसको हम पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहते हैं, वो ही इज ओके विद दिस टाइटल बीइंग पास्ड ऑन टू दिस गाय। वही वाली बात है कि अगर फौज आपके साथ हो तो 126 दिन का धरना है, और अगर फौज आपके खिलाफ हो तो 26 मिनट में भगा देगी आप। राजली साहब, आपकी बातों से मुझे तासुर ये मिल रहा है कि जैसे इमरान खान और पीटीआई अभी सस्टेन रखेंगे अपने मुजाहिमती पॉलिटिक्स को, तहरीकों को, लॉन्ग मार्च कह लें, जलसे जुलूस कह लें, अभी जो ये यौम स्याह होने जा रहा है 8 फरवरी को, मुझे लग रहा है कि ये अभी आपकी बातों से, जो मैं अगर गलत तासुर नहीं ले रहा, तो अभी ये इसी ट्रैक पर ही चलेंगे। आपकी बातों से तासुर आ रहा है। आप मेरा सवाल इसको इस तरह कर लें, आप इसको इस तरह कर लें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ अभी मार खाने के मूड बना चुकी है। बना चुकी है। कुछ देर हमने मार खानी है और हमने मार खाते रहना है, और कोई बात यहाँ से अगला सवाल यही जनरेट होता है ना, ये सूरत हाल फिर कहाँ जाएगी सर? ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? ये यौम स्याह मनाएंगे, ये फिर वो ट्वीट सख्त पैगामात आएंगे, फिर कोई गिरफ्तारियां होंगी, फिर मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत नहीं जाएगी, एहतजाज होगा, तो ये तो मामला फिर खराब से खराब तर होते चले जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बेनिफिशियरी, जिस मैंने पहले भी कहा, वो तो बाय डिफॉल्ट हुकूमत ही होगी। हुकूमत कहेगी ठीक है यार, लड़ते रहो आपस में, हमारा तो यहाँ काम सारा चल रहा है। देखें, वो अब अगर आप कह रहे हैं बेनिफिशियरी इन द सेंस कि हुकूमत अगर कोई पैसे बनाना चाह रही है, हुकूमत में बैठे लोग तो वो बना लेंगे, तो परहैप्स ये हो जाए, मगर ये हर वक्त होता रहता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो ये है इस चीज के ऊपर कि इवेंचुअली वन ऑफ द टू पार्टीज विल हैव टू बैक ऑफ। बिल्कुल, अब इमरान खान के साथ जितना कुछ ये कर सकते थे वो ये कर चुके हैं। एक चीज रह गई है कि उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट भेज के उनको फांसी की सजा दे दी जाए, ठीक है। अब उस एक्सट्रीम पे मुझे नहीं 2025 में पाकिस्तान की फौज या एस्टेब्लिशमेंट या जो लोग एस्टेब्लिशमेंट के करता धरता है, मुझे नहीं वो ये स्टेप लेते हुए नजर आ रहे। आप जानते ही हैं कि दो बड़ी अहम अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक तो वो EU से रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने आके गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि जो सिविलियंस का आपने मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया है ये ठीक नहीं है, हम आपका GSP प्लस स्टेटस हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पहले तो पर्चा आया था, बंदा आ गया है। फिर उसके बाद दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पता नहीं आपको पता है नहीं, न्यूयॉर्क बार ने रेजोल्यूशन पास की है कि जो 26वीं तरमीम है, उस तरमीम ने जो बेसिक ट्राइकोटोमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, जिसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, उसको वायलेट जो किया है, उसके ऊपर उन्होंने रेजोल्यूशन पास की है। अब देखिए, आप पूरी दुनिया में अपना अगर मजाक उड़वाएंगे इस तरह, तो आप समझते हैं लोग आपको सीरियस लेंगे? आप देखें ना, इकोनॉमी को हमने चलाना है, सिर्फ भीख मांग के तो नहीं चलाना। आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बाद आपसे ना इसी सवाल पर आने जा रहा हूं मैं, आज पर आपसे पूरी आपके हम इस्तेफादा करना चाह रहे हैं 26वीं तरमीम पर और कानूनी मामलात पर। सियासत के वजह से आखिरी सवाल मेरा वो ये कि क्या आपने कहा कि दोनों फ्री कैन में से किसी को एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, ऐसी आप नहीं समझते कि एक सियासतदान के तौर पर, सियासी मुदब्बर के तौर पर, पॉलिटिकल स्टेट्समैन का मुजाहरा करते हुए इमरान खान साहब को ही पीछे आ जाना चाहिए एक स्टेप? इमरान खान इज नॉट अ पॉलिटिशियन। अच्छा, तो फिर ये नहीं कोई लचक नहीं, कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई किसी किस्म का मुफाहमत, कोई इस तरह की I don't know, I can't predict the future, मगर मैं आपको दूसरी तरफ की एस्टैब्लिशमेंट है ना, फिर दूसरी तरफ भी फिर वो बिल्कुल है, सियासतदान नहीं है। बात समझें, मेरा ओपिनियन ये है कि एस्टैब्लिशमेंट या जो भी इस तरह का इदारा होता है ना, जो पावर सर्कल में होता है, जो बिहाइंड द डोर सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, वो एक अपॉर्चुनिस्ट इदारा होता है। वो उसका मोटिव जो है वो अपनी पावर को होल्ड करना है। उसका मोटिव अपनी पावर को होल्ड करना है और एक्सरसाइज करना है।
उसकी अना नहीं है, इंसान की अना है। और दूसरी तरफ एक इंसान है जिससे आप लड़ रहे हैं। वो इंसान अब ऑब्वियसली उसका कल्ट है, लोग उसको फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, टू सम एक्सटेंट परहैप्स बड़ी पैशनेटली उसको वर्शिप भी करते हैं। उस इंसान की अना है। तो इमरान डजंट केयर कि क्या होगा, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। देखिए ना, ही इज ऑलरेडी इन जेल, ही हैज, एंड बड़ी मतलब अब मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि जरदारी साहब जो हैं, जिसको हम पाकिस्तान का नेल्सन मंडेला कहते हैं, वो ही इज ओके विद दिस टाइटल बीइंग पास्ड ऑन टू दिस गाय नाउ, क्योंकि जिस ग्रेस से इस इंसान ने जेल को सहा है, इट वाज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड वेरी सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन टू सी। मगर वो ठीक है राजस्थान, ये सियासी आपने बड़ा अच्छा हमें गाइड किया, तदिया दिया। अब जो है वो आते हैं हम 26वीं तरमीम, जिसकी वजह से बहुत से इश्यूज पैदा हो रहे हैं। और बड़ा इशू, अब इसमें भी आप हमें गाइड कीजिए, जो बड़ा इशू हमें नजर आ रहा है सर, वो कहीं जजेस की ऐसी तकसीम तो नहीं होने वाली जो 1997 में हुई थी, 2007 में हुई थी, 2009 में हुई थी? क्योंकि जजेस की तकसीम जब होती है तो ऑल ओवर वो पॉलिटिक्स पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, पॉलिटिकल सूरत हाल में भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये जजेस की तकसीम को आप कहाँ जाता देख रहे हैं? देखें, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर यहाँ पर आप वो दो सुप्रीम कोर्टों का जो तस्वुर है, जो इफेक्टिवली हुकूमत ने क्रिएट कर दिया है 26वीं तरमीम के नतीजे में, उसके अंदर मुझे बगावत नजर नहीं आ रही, एटलीस्ट फ्रॉम द प्रेजेंट चीफ जस्टिस। आई थिंक ही हैज कम टू टर्म्स विद व्हाट हिज न्यू रोल इज, कि उन्होंने मेंटेनेंस देखनी है, एडमिनिस्ट्रेशन देखनी है, कोई जेल रिफॉर्म करने हैं, और इस तरह की नॉन चीफ जस्टिस वाली चीजें करनी है। कि जब ये खाली फिस्कल नहीं होता, ये ओवरऑल किसी भी मुल्क की, ज़ाहिर है पाकिस्तान भी उसमें IMF फंड प्रोग्राम में है, तो वो उसके सारे डायमेंशंस देखते हैं। तो जिस वक्त वो प्रोग्राम तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टिव होता है कि ये आज के और हिस्टोरिकल डेटा को देखते हुए अगले 3 साल में किस किस्म के ग्रोथ के डायनेमिक्स डेवलप होंगे, किस तरह से फिस्कल मैनेजमेंट की जाएगी, एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल होगी, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो फॉरेन इन्फ्लोज हैं FDI की शक्ल में, उनका क्या साइज और वॉल्यूम होगा। ये देखिए, जब ये इस तरह के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल मासूम है और पाकिस्तान आ रहे हैं पहली मर्तबा और वो कोई तैयारी नहीं है और किसी से बात नहीं की और आके हमारे ऑफिशियल्स के साथ मिलके और वो जो भी कहें वो समझ के वापस चले जाएंगे। वो आने से पहले बहुत रिसर्च करते हैं उस मौजू पे जिस पे मिशन ने आना है। इट इज बेयरली इनफ टू मीट द डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट। उसके बाद जो आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है, पेंशन है, सिविल गवर्नमेंट की रनिंग है, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ऑल दैट इज एंटायरली बोरोड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी। अगर मैं एक नंबर में उसको कहूं कि जो लास्ट ईयर था वो 56% था डेट सर्विसिंग ऑफ द टोटल फेडरल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो टैक्स रेवेन्यूज थे वो उस 56% को कर चुके। बाकी जो 44% है वो सारा बोरोड मनी है फ्रॉम द पर्टिकुलरली फ्रॉम द यानी डोमेस्टिक बैंकिंग। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद जुबैर साहब, ही इज एन इकोनॉमिस्ट। इनसे आज बात करेंगे। IMF का वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, 3 रुकनी वफ्द। 6 तारीख को आया था, 14 तारीख को उन्होंने जाना है, तो इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके नाजरीन को। सवाल बुनियादी तौर पे आपके सामने रख देते हैं। जो बुनियादी सवाल है वो ये कि ये तो समझ आती है कि वो IMF का वफ्द जो है पाकिस्तान में गवर्नेंस को देखे, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस से मुलाकात करना, उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बात करना, उसके अंदर प्रोब करना, इन्वेस्टिगेट करना कि वो अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रही हैं, ये समझ नहीं आती कि ये मामला किस हद तक चला गया है। क्या वो पाकिस्तान के मामलात में अब इतना माइक्रो लेवल के ऊपर इंटरफेयर कर रहे हैं, इफ यू अलाउ मी टू यूज द वर्ड इंटरफेरेंस, कि जो पैसे वो देते हैं अब उससे दे आर माइक्रो मैनेजिंग पाकिस्तान। जी डॉक्टर जफर, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले इसका एक कॉन्टेक्स्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है।
और उसमें मुझे जरा थोड़ा सा टाइम लगेगा। श्योर, यू टेक जवाब योर देते टाइम। वक्त आप सवाल आपके सामने रख दिया, अब आप जैसे चाहें उसको फ्रेम कर लीजिए। जी जी, नहीं, अगर मेरे जवाब में अगर कोई अभाम हो या क्लैरिटी ना हो तो मुझसे कर लीजिएगा। यकीनन यकीनन। अब वो एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ये है कि ऐसे ममालिक जो कि बेसिकली फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट होते हैं, तो ग्लोबल लेवल पे IMF इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो जो मुल्क रिलेटिवली वेल मैनेज्ड होते हैं, तो वो किसी भी एक्सटर्नल या इंटरनल शॉक्स की वजह से उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होती है और वो IMF के पास जाते हैं फॉर अ टेम्परेरी लिक्विडिटी हासिल करने के लिए। वहां तक तो सही है, लेकिन अगर आप ऐसे मुल्क, कई पाकिस्तान नहीं, कई मुल्क हैं ऐसे जो कि सीरियल हैं, जो कि बार बार वापस जा रहे हैं IMF के पास बोरिंग करने के लिए, तो वो इशू फिर वहां ये आता है कि खाली इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट नहीं है, और भी इसके अलावा काफ़ी इश्यूज हैं। और उसमें जो गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी और करप्शन, ये बड़ा वाइड लिटरेचर है इकोनॉमिक्स की फील्ड में, कि वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कि मुल्कों की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है और एक सस्टेन डेवलपमेंट का जो एजेंडा है वो हासिल नहीं कर पा रहे। और इस पर बहुत ज़्यादा लिटरेचर है और वो तकरीबन यूनानिमस है कि ये गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ या इंटेग्रिटी और करप्शन, ये तीनों चीज़ें बड़े शदीद तरीके से नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। अब इस बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखते हुए 2018 में IMF मैनेजमेंट ने अपने बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्रेमवर्क फॉर इनहांस एंगेजमेंट ऑन गवर्नेंस। ये 2018 में फर्स्ट टाइम IMF मैनेजमेंट ने अपने बोर्ड को दिया और वो पूरा एक तौर तरीका बताया कि उनका अपना एक्सपीरियंस क्या है इस सिलसिले में। उसके बाद वो जो था फ्रेमवर्क, उसमें कंट्रीज जो हैं वो वॉलंटरी तौर पे अपना एक गुड गवर्नेंस और करप्शन रिलेटेड इश्यूज को इन गुड फेथ एज अ टेक्निकल एडवाइस फ्रॉम द IMF रिक्वेस्ट करती थी। तो ये वॉलंटरी रिक्वेस्ट होती थी IMF को कि आप हमारी मदद करें इन दो एरियाज में, गुड गवर्नेंस में और एंटी करप्शन मेजर्स में। तो उसके बाद इन्होंने एक अपडेट प्रेजेंट की IMF मैनेजमेंट टू द बोर्ड और अप्रैल 2023 में, और उसमें उन्होंने कहा कि वो पूरा था उनका एनालिसिस कि अब मुख्तलिफ, क्योंकि IMF सारे मुल्कों के, दुनिया के सारे मुल्कों के साथ इंगेजमेंट करता है। एक होती है आर्टिकल 4 इंगेजमेंट और दूसरी होती है प्रोग्राम लैंडिंग। तो वो तकरीबन चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो, इंडिया, कोई भी मुल्क हैं छोटे बड़े, वो सब के साथ उसका कांस्टेंट एनुअल या एवरी 2 इयर्स उनकी एक एंगेजमेंट होती है। तो उससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो गुड गवर्नेंस और एंटी करप्शन के हवाले से जो कंट्रीज के साथ इंगेजमेंट है वो काफी वीक है। कनाडा बिल्कुल महदूद था अपने ट्रेड रिलेशन या तजारती रिलेशन, सिर्फ अमेरिका पे इन्हिसार कर रहा, उससे जो है वो बाहर निकलने का मौका मिला है। इससे शॉर्ट टर्म में कैनेडियन को जरूर महंगाई है या कुछ और इश्यूज हैं वो जरूर एक शॉर्ट टर्म में उनको का लगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं देख रहा हूँ कि ट्रम्प की ये पॉलिसी अमेरिका के लिए बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन कनाडा के लिए ये बड़ी बेनिफिट होने जा रही है। खासतौर पे जो कनाडा का ट्रेड रिलेशनशिप है वो डिवर्सिफाई होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन से ऑलरेडी काफी पेशरफ हो चुकी है। जापान और इंडिया के साथ सीरियस टॉक चल रही हैं। कनाडा की जो जेन्युइन जो कैनेडियंस हैं, जिनको एक्चुअल कैनेडियन हम कहते हैं, नेटिव्स का नाम है, जो कि पुराने हैं यहाँ पे, जो हजारों साल से रह रहे हैं नेटिव, उनके आज तक सबसे ज्यादा इश्यूज थे इन चीजों पे कि हम यहाँ पे जो है रिफाइनरीज नहीं लगने देंगे या हम पाइपलाइन नहीं बिछने देंगे। उन्होंने बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी है उनकी ऑर्गेनाइजेशंस ने कि हम कनाडा के साथ खड़े हैं और अमेरिका की पॉलिसीज को हम कंडेम करते हैं, जो भी वो ट्रम्प साहब ने स्टार्ट की है। और
उन्होंने कहा है कि आप ये पाइपलाइंस हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, इनको आप प्रायोरिटी बेसिस पे कनाडा में इस पे काम शुरू करें, नेटिव्स आपके साथ खड़े हैं। हालांकि पिछले 50-60 सालों से उन्होंने शदीद तनकीद की, मज़ामत की कि हम ये नहीं लगने देंगे, डू और डाई सिचुएशन थी, बट अब ट्रम्प साहब की पॉलिसीज की वजह से चीजें यकसर चेंज होना शुरू हो गई हैं। देखिए, ये सावर रिलेशनशिप वन साइडेड है अमेरिका की तरफ से कनाडा के लिए। कैनेडियन ने कभी भी ना तो हार्ड वर्ड यूज किए हैं, ना कभी इस तरह की जो है वो पॉलिसीज अपनाई हैं, और आज भी ये बात नहीं हो रही कि अमेरिका के साथ रिलेशनशिप को खत्म करें या मिनिमाइज। बात ये हो रही है कि कनाडा को जो इन्हसार है अमेरिका पे, उसको कम करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्हसार रहा है, 70-80% वो अभी भी है, तो उसको कम करने की जरूरत है। उस बोझ को कम करें और दुनिया के साथ रिलेशनशिप बढ़ाएं। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ वैंकूवर कनाडा से मौजूद हैं राना गुलजार अहमद साहब, सीपैक एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज इनसे बात करेंगे हम यूएस कनाडा रिलेशंस पे, और जो वहां पे एक सिचुएशन इमर्ज कर रही है। ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ इम्पोज किए हैं कनाडा पे, उसके बाद से राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपके साथ। ये जो भी इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है, विदाउट गोइंग मच इनटू द बैकग्राउंड एंड डिटेल्स, जो टैरिफ्स इम्पोज किए हैं कनाडा से, और ये फरमाइश जो थी कि हमारी 51st रियासत बन जाए कनाडा, तो अब इस वक्त कनाडा में क्या सूरत हाल है? हाउ इज कनाडा गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स? जी सर, बहुत शुक्रिया मुझे ऑनलाइन लेने का। ट्रम्प साहब की जो टैरिफ पॉलिसी है वो जाहिर है पूरी वर्ल्ड के बारे में है, इंक्लूडिंग कनाडा। कनाडा कभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूएस की तरफ से इस तरह का मैसेज कनाडा को आ सकता है। बहरहाल पूरा कनाडा हैरान जरूर था, लेकिन ट्रम्प साहब की इस टैरिफ पॉलिसी की वजह से जो बेनिफिट हुआ है कैनेडियंस को कि वो अब जाग गए हैं, वो एक तरह की वेकअप कॉल उनके लिए साबित हुई है। इससे पहले कनाडा सोया हुआ था, अमेरिका पे डिपेंड कर रहा था। 70-80% उनके ट्रेड रिलेशनशिप्स, एवरीथिंग अमेरिका से जुड़े हुए थे। खामोशी से, सुकून से सब कुछ स्मूथ चल रहा था। लेकिन ट्रम्प साहब के आने से जो है वो एक तरह की वेकअप कॉल हुई है। उससे हुआ ये है कि कैनेडियंस इकट्ठे हो गए हैं, जाग गए हैं, और उन्होंने अमेरिका के साथ साथ अब अदर देन अमेरिका को देखना शुरू किया है। खास तौर पे जो पिछले 1 महीने में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, यूरोपीय यूनियन, जापान, इंडोनेशिया, इवन अब इंडिया और चाइना के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाने की बातचीत हो रही है। यूरोपीय यूनियन के साथ काफी पेशरफ ऑलरेडी हो चुकी है, और बाकी भी कंट्रीज के साथ ये सिलसिला जारी है। तो एक तरह से जो कनाडा बिल्कुल महदूद था अपने ट्रेड रिलेशन या तजारती रिलेशन, सिर्फ अमेरिका पे इन्हसार कर रहा था, उससे जो है वो बाहर निकलने का मौका मिला है। इससे शॉर्ट टर्म में कैनेडियन को जरूर महंगाई है या कुछ और इश्यूज हैं वो जरूर एक शॉर्ट टर्म में उनको झटका लगा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं देख रहा हूँ कि ट्रम्प की ये पॉलिसी अमेरिका के लिए बेनिफिट हो या ना हो, लेकिन कनाडा के लिए ये बड़ी बेनिफिट होने जा रही है। खास तौर पे जो कनाडा का ट्रेड रिलेशनशिप है वो डिवर्सिफाई होने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन से ऑलरेडी काफी पेशरफ हो चुकी है। जापान और इंडोनेशिया के साथ सीरियस टॉक्स इस वक्त चल रही हैं, और चूंकि कनाडा का पास्ट में ड्यू टू यूएसए अमेरिका की वजह से इंडिया और चाइना के साथ रिलेशनशिप ज्यादा अच्छा नहीं रहा, उसकी रीजंस आपके नॉलेज में हैं। लेकिन अब ये बात शुरू हुई है कि हमें चाइना और इंडिया के साथ भी रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, और कनाडा इज फर्स्ट। ठीक है, कनाडा के पास बहुत कुछ है आफ्टर रशिया। जो कनाडा है वो आपको पता है कि सेकंड बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका से ये बड़ा मुल्क है। इसके नेचुरल रिसोर्सेज, हर चीज वो अमेरिका से ज्यादा है। ये कह देना कि ये 51st स्टेट बनेगा, ये तो खैर एक दीवाने का ख्वाब है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, इसके कोई चांसेस नहीं है। ये जरूर है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो जारी रहेंगे, लेकिन उसमें जो कनाडा से कोई यूनियन इस तरह की बन सकती है कि कोई हम यूरोपीय यूनियन की तर्ज पे जो है नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज मिलके कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन करें कि
यूरोपीय यूनियन की तरह जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप बढ़े, लेकिन हर कंट्री जो है उसकी जो ज़ाहिर है इंडिपेंडेंस है या बाउंड्रीज है वो उस तरह की उस तरह महफूज है। एंड इट वाज अ वेरी टेरेबल पॉइंट फॉर मी, और एकदम से मेरा भाई मुझे बिजनेस भी संभालना है, 5-6 मेरे ऑपरेशंस भी हो गए और बड़ा खतरनाक हो गया मेरे साथ में। लेकिन उस समय फिर मैंने कहा कि हाउ आई विल ओवरकम इट, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि ये तो हो गया सो हो गया, अब इससे बाहर कैसे निकलूं। तब उस समय मुझे तो किताबें पढ़ने का पहले से बहुत शौक था, उस समय मैंने और किताबें पढ़ना शुरू कर दी। अब दिखता तो था नहीं, मैंने कहा चलो ऑडियो बुक्स और यूट्यूब पॉडकास्ट देखो और पढ़ो, सब पढ़ डाला। मतलब मेरे दोस्त तो बोलते थे कि तुम इतनी पढ़ाई पहले कर लेते शायद तुम्हारी जिंदगी बन जाती, लेकिन मतलब सैकड़ों किताबें पढ़ डाली मैं। उस समय मैंने जिन्ना साहब मेरे लिए एक थोड़े से मिस्टिकल फिगर, मेरे को हमेशा समझ में नहीं आता, उनकी पर्सनालिटी समझ में नहीं आया करती थी मेरे को, वो क्या है, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। एंड आई यूट्यूब में मुझे इश्तियाक साहब का एक वीडियो दिखा, यार मैंने कहा ये तो कुछ अलग ही बात बता रहे हैं यार, ये तो एकदम जो एक अपन नॉर्मल व्यू में सुनते हैं, वो जिन्ना साहब कौन है, उन्होंने देश तोड़ दिया, ये कर दिया, ये तो कुछ अलग ही चीज बता, जो कड़वी बात और सच्ची बात दोनों की होती है। तो ये इश्तियाक साहब को, मतलब मैं इश्तियाक साहब कई बार बेचारे को क्या होता है, देखिए जो स्कॉलर होता है ना उसकी एक बहुत बड़ी स्टडी होती है, और जब ऐसे फालतू के, अब मैं खैर उसके बारे में बात ही मत करो, जिनको देखिए मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी वाले आदमी कोई समझ सकता है, कोई क्वालिटी समझ सकता है, एंड मनी कांट बाई क्वालिटी। मैं इतना भी जानता हूं, जैसे कई लोग पैसे वाले होते हैं लेकिन मैं देखता हूँ कि क्वालिटी नहीं उनके पास, ये क्वालिटी एक अलग चीज है, एक अलग टॉपिक है। अब रही बात जिन्ना साहब के बारे में, जो इश्तियाक साहब को जो मैं तो कम से कम कितने इनके वीडियो देखे मैंने जो अपने उनके बारे में समझा कि ही वॉज अ वेरी गुड एडवोकेट। जैसे एडवोकेट जो होता है, जो अपना केस जीतने के लिए सारे उल्लू सीधे कर देता है, इधर से उधर कर देता है। ही हैज अ पर्सनालिटी, अगर उनकी पर्सनालिटी नहीं होती तो ये देश का विभाजन करना आसान नहीं था। ही हैज अ पर्सनालिटी, लेकिन यार उन्होंने बहुत गहरे बीज डाल दिए जो कि ये सब कॉन्टिनेंट बहुत भुगत रहा है, खासकर मतलब अब चूंकि आपने बात पूछी है, मतलब बहुत भुगत रहा है ये सब कॉन्टिनेंट इस चीज। तो मेरा ये मानना है कि उन्होंने विजन नहीं रखा पाकिस्तान के लिए। तकसीम हिंद 1947, द ब्लडी पार्टीशन ऑफ पंजाब, तनाज़ा कश्मीर, 1965 की पाक भारत जंग, सानियाए मशरकी पाकिस्तान और भारत का किरदार, खालिस्तान मूवमेंट और ऑपरेशन ब्लू स्टार, अटल बिहारी वाजपेयी का दौरा लाहौर और कारगिल जंग, इंडियन पार्लियामेंट पे हमले, मुंबई हमले, बालाकोट पे भारतीय हमला, कुलभूषण यादव और बलोचिस्तान, तनाज़ात और इल्जामात में अमन की तलाश। वॉच इंडो-पाक डायलॉग विद डॉक्टर इश्तियाक अहमद एंड लीडिंग वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। Talking Politics on Federal Post. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स स्पेशल एपिसोड इंडो पाक डायलॉग। हमारे साथ इस वक्त बेंगलोर से मौजूद हैं जनाब अमित मेशवारी साहब और हमारे साथ होते हैं डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब जरा अमित साहब का तारुफ कराइए हस्ब रवायत, फिर आगे चलते हैं। देखें जी, अमित माहेश्वरी जो है, ये जब मैं बेंगलोर आया तो एयरपोर्ट पे इन्होंने वो पूरा एक सेरेमनी पूरी की और वहां पे मुझे वो पहनाया गया, सर पे टोपी, गले में कुछ और। तो इट वाज अ बिग ओकेजन जिसकी मैंने पिक्चर्स भी लगाई थी। और फिर हम इनके घर गए तो वहां पे बहुत बड़ा सरप्राइज था। एज वी एंटर्ड तो वहां पे वो इन्होंने ढोल वाले को बुलाया हुआ था, पंजाबी ढोल वाले को। अच्छा। तो हमने फिर मिलके वहां पे वो क्या कहते हैं भंगड़ा भी डाला। वो भी मेरी वीडियो जो थी वो जी। तो अमित जी के साथ रेगुलरली तकरीबन हर रोज नहीं तो हफ्ते में 2-3 दफा हमारी गपशप हो जाती है। इट्स लाइक आई फेल्ट लाइक फैमिली व्हेन आई वाज देयर। इतने हम करीब हैं। और जब मैं वेरी नाइस अमित जी, बहुत आपको हम वेलकम करेंगे। इश्तियाक साहब आप बोलिए, आप अपने बात तो कंप्लीट कीजिए इश्तियाक साहब। नहीं, मैंने कहा ये वो था लास्ट ईयर। इस साल जब मैं गया तो इन्होंने फिर बेंगलोर एयरपोर्ट में मुझे और मलिया को रिसीव किया। फिर जहाँ पे हमने जाना था उसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो वहां छोड़ने गए, विच वॉज क्वाइट अ डिस्टेंस एक्चुअली।
फिर बाद में एक दफा दोबारा मुलाकात हुई, तो इस तरह हमारा बड़ा करीब का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मैं बताऊंगा अपनी वार्तालाप, अपनी जो बातचीत है, तो इश्तियाक साहब के बारे में कैसे ये मेरे जीवन में आया ये भी मैं बताऊंगा, और एक बहुत अच्छी अपनी गुफ्तगू होगी। और जरा ये भी बताइए कि आपका इलाहाबाद से ताल्लुक है और वहाँ से आपकी फैमिली है, और फिर आप 25 साल हो गए, आप बेंगलोर शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे और आपका जो है इंटरेस्ट है किताबों में और आपका इंटरेस्ट है पब्लिक स्पीकिंग में, ये आपकी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है ये सब बातें। तो अब बताइए आप जो हमें बताना चाहते हैं कि इश्तियाक साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ। बिल्कुल सर, यस बिल्कुल, मैं शुरू करता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज ग्रेट, इश्तियाक साहब ने जब बोला कि एक बढ़िया गुफ्तगू होगी, तो इट वाज ग्रेट। मैंने कहा इश्तियाक साहब के साथ बात करना ही अपने आप में एक बहुत लर्निंग होती है। तो पहला मैं शुरू करता हूँ कि आई एम बोर्न इन 1975। तो थोड़ा सा यंग बोल दीजिए, मैन बोल दीजिए मेरे को, बॉय मत बोलिए, मैन बोल दीजिए मेरे को आप। यंग मैन बोल दे। यस। तो मेरा 25 साल देखे हैं पिछले सदी के और 25 साल देखे हैं इस सदी के। और तो मैं शुरू करता हूं अपनी बातचीत, और मेरी पहला पॉइंट है कि मेरे को पाकिस्तान का जो एक क्यूरियोसिटी कैसे मेरे अंदर आई। तो माय फर्स्ट पॉइंट इज हाउ आई गॉट सो मच क्यूरियस अबाउट पाकिस्तान। जी। तो बेसिकली मैं पैदा हुआ इलाहाबाद, प्रयागराज, जो अभी सब लोग जा रहे हैं महाकुंभ नहाने के लिए, लेकिन प्रयागराज के आगे एक छोटा सा शहर है सतना करके, सतना मध्य प्रदेश में है। अच्छा। तो इट्स मध्य प्रदेश, हाँ जी। तो हमारा एक घर इलाहाबाद में था और एक घर हमारा मध्य प्रदेश में था, है आज भी है मेरा घर वहां पे। तो हमारा घर था, हमारे घर के पीछे एक भाटिया फैमिली रहा करती थी, बहुत अच्छे, मतलब बड़े प्यारे लोग। और वहां पे अंकल आंटी थे भाटिया फैमिली में, देवर पंजाबीज। सो वो लाहौर के थे। तो जब उनके घर में हम खाना ना खाने जाते थे, तो वो हमको, मेरे को लाहौर की कहानियां सुनाने कर देते थे। बोलते थे कि यार वो कौन सा बाजार था, अनारकली बाजार बोलते थे, मैं वहां उनकी दुकान थी। और वो बोलते थे यार, एक कोई पंजाबी में बोलते थे कि लाहौर का खाना और अमृतसर का घूमना, ऐसे कुछ लोग बोलते थे। एंड ही वाज लाइक, हम लोग साइकिल से अमृतसर जाया करते थे, एंड ही मेड मी वेरी मच क्यूरियस अबाउट द लाहौर। और आंटी भी लाहौर की थी, उनसे मैं अभी 2 महीने पहले मिला था, एंड आई हैव स्पोकन अबाउट लाहौर। उन्होंने फिर कहानियां बताई थी लाहौर की मेरे को। तो इट वाज फर्स्ट क्यूरियोसिटी जो मेरे को पाकिस्तान के बारे में आई, वो उनसे आई, लाहौर के बारे में। फिर क्या हुआ कि जो हम लोग का जो कॉलोनी था, उसमें 80% सिंधी रहा करते थे, जो पाकिस्तान से आए थे। एक तो आजादी के समय आए थे, एक 71 के पहले भी कुछ सिंधी लोग आए थे वहां पे। तो उनके साथ मेरा इंटरेक्शन, मुझे तो मतलब सिंधी बोलना भी आती है, लेकिन अभी तो फ्लुएंसी चली गई क्योंकि मैं कर्नाटक में, मैं बेंगलोर में हूँ 25 साल से। तो उनके साथ मेरी गुफ्तगू खूब होती थी। सुबह सुबह मिलते थे कहीं पे पार्क में, यहाँ पे, तो लोग शुरू जाया करते थे, अरे वो सिंध चे मेरे दे तो चौंदो झूले लाल इतना दिंदा बेड़ा पार, मेरे को पूरा सिंधी शुरू हो जाते थे लोग। तो उनसे बड़ी गुफ्तगू होती थी, और वो शुरू हो जाते थे, सिंध में ये है, सिंध में वो है, हैदराबाद, जकूबाबाद, और वो पता नहीं सखर, कैसे से बातें करते थे वो लोग। एक बार तो यार, मतलब सॉरी टू से, मतलब मेरे पे गुस्से में उनको बोल भी दिया था। मैं तो छोटा था, 10-15 साल का था यार तुम लोग इतनी सिंध के बारे में बात करते हो, चले क्यों नहीं जाते हो वहां पे। तो मतलब आई वाज अ किड यार, मतलब इट वाज नॉट मीनिंगफुल और समथिंग आई सेड टू देम। तो लेकिन एक चीज इस पॉइंट में मैं रखना चाहता हूं, क्योंकि आप और इश्तियाक साहब एक बहुत लर्नर्ड और एक चीज है कि उन दोनों के ना, मतलब मैं देखता था उनकी आंखों में बहुत दर्द था। मैं इश्तियाक साहब को समझ सकता हूँ, इश्तियाक साहब भी लाहौर रहे हैं, फिर स्टॉकहोम चले गए। मतलब उनके इतना दर्द था और इतना उनको वो था कि यार व्हाई वी लेफ्ट, मतलब क्यों हुआ ये। तो ये मेरी जो एक क्यूरियोसिटी जागी, वो पाकिस्तान के लिए इधर से जागी। तो ये एक था मेरा पॉइंट। दैट्स व्हाट आई वाज वेरी। हाँ जी अमित जी, आए नहीं आप कभी पाकिस्तान आने का? नहीं आपका प्रोग्राम? बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा है, और देखा ऊपर वाला चाहेगा तो मैं आऊंगा भी। अब हाँ जी। तो सेकंड पॉइंट जो मेरा है, आई वांट टू टेल यू, बिकॉज एक अपनी लंबी गुफ्तगू हो रही है, आई वांट टू टेल अबाउट माई सेल्फ
मेरे लाइफ के कुछ 3 टर्निंग पॉइंट्स, और उसी टर्निंग पॉइंट्स में मैं इश्तियाक साहब से भी मिला। तो मेरे लाइफ का बेसिकली आपको पता है कि मैं सतना मध्य प्रदेश में है एक जगह, तो मेरा पहला टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में 2000 में। वहां बहुत उस समय मतलब बदमाशियां, गुंडागर्दी और बिजनेस बहुत डल था। तो ऐसे ही हमारा बिजनेस ड्रॉप हो गया, लूट मार हो गई वहां पे, और मुझे बेंगलोर आना पड़ा सन 2000 में। तो एक छोटे शहर से सीधे एक आईटी सिटी और एक टेक्नोलॉजी वाली सिटी में आ गया। बड़ा एक अजीब सा कल्चरल शॉक था मेरे लिए, क्योंकि बेसिकली वो एक नॉर्थ का कल्चर था और ये एकदम बिल्कुल साउथ का कल्चर है। तो एक मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट ये आया। तो मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया, बेंगलोर में बिजनेस करने लग गया। प्लाईवुड का और लैमिनेट का मेरा बिजनेस है यहाँ पे। दूसरा टर्निंग पॉइंट जो मेरी लाइफ में आया, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो आया 2016 में, 2016 व्हेन माय फादर पास्ड अवे। और मैं उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया। मतलब आई वाज वेरी मच इन लव विद माय फादर, एवरीबॉडी हैज अ लव विद द फादर, बट आई वाज नॉट रेडी फॉर हिज डेथ। तो उस समय मैं बिल्कुल ग्रीफ पे चला गया, एंड दैट टाइम एक न्यू जर्नी चालू हुई मेरे साथ में कि आई वेंट टू द स्पिरिचुअलिटी। मैं एक एक अपने आप को हील करने के लिए मैं स्पिरिचुअलिटी में चला गया। बहुत भटक तो मैं शुरू से, मेरे घूमने की बहुत ट्रैवलिंग की आती है, लेकिन बहुत भटका मैं। और उसमें कई लोग मिले मुझे, जैसे ओशो एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं यहाँ के। कई किताबें पढ़ी, बाइबल पढ़ी, गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, सब पढ़ लिया उस समय। मतलब ऐसा एक स्पिरिचुअलिटी में चला गया था मैं। मेरे लाइफ में तीसरा टर्न पॉइंट जो आया, वो एक थोड़ा सा बड़ा ट्रेजिक था। 2020 में कोविड के समय आया तीसरा टर्निंग पॉइंट। मेरे दोनों आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई अचानक, एंड इट वाज अ वेरी टेरेबल पॉइंट फॉर मी। और एकदम से मेरा, भाई मुझे बिजनेस भी संभालना है, 5-6 मेरे ऑपरेशंस भी हो गए, और बड़ा खतरनाक हो गया मेरे साथ में। लेकिन उस समय फिर मैंने कहा कि हाउ आई विल ओवरकम इट, मैं इससे कैसे बाहर निकलूं, क्योंकि ये तो हो गया सो हो गया, अब इससे बाहर कैसे निकलूं। आरफा नगमा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी मजे मजे के टॉके जो इंस्टेंट बन सके और हमारी स्किन को और हमारे बालों को हसीन और जमाल बना सके। क्योंकि देखिए, खूबसूरत नजर आना सबका हक है, और अच्छी स्किन, अच्छे बाल जहाँ लेडीज को चाहिए वहाँ मर्दों को भी चाहिए, वहाँ बच्चों को भी चाहिए। बात करते हैं स्किन ड्राई क्यों होती है। अगर स्किन ड्राई होती है तो साथ में हमारे बाल क्यों ड्राई होते हैं। जैसे सर्दी आती है ना, तो उसके अंदर हमारे पास अल्लाह की दी हुई बहुत बहुत अच्छी और बहुत प्यारी और बहुत हेल्दी नेमतें हैं हमारे पास। फिर हम स्किन पे क्या लगाएं कि जिससे हमारी जो स्किन जो है वो जरा सॉफ्ट हो जाए, और जो क्रैक्स आना शुरू होते हैं उससे, छाइयां और रिंकल्स आना शुरू होते हैं ड्राइनेस की वजह से, तो उसका हल बताएं। गट हेल्थ अच्छी होगी तो मैं कहती हूँ आपके ओवरऑल ये जो स्किन हमारी नजर आती है, जो बाल नजर आते हैं, ये एक्चुअली हमारी स्किन महंगी ब्रांडेड जेल लेते हैं कि फेस को हाइड्रेट करें, अपनी स्किन, हमारी स्किन पे रिंकल ना आए, हमारे बाल ना खराब। और 10 रुपए में मैं बताती हूँ आपके बाल भी, आपकी स्किन भी, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अंबर उमर और आप देख रहे हैं कॉकटेल। जैसे ही मौसम चेंज होता है, स्किन के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। स्किन के लिए हम डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, फिर उसके साथ साथ स्किन के इश्यूज चल रहे होते हैं, उसके साथ साथ हमारे बालों के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हम महंगे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी, लेकिन उससे कोई फायदा होता नहीं है। तो फिर उसका हल क्या है? उसका हल फिर हम ढूंढना शुरू होते हैं कि घर में कोई चीज ऐसी मिल जाए जिसको यूज करके हम जो अपने बालों और अपने स्किन को हसीन बना सके, कुछ तो ख्याल कर सके अपनी स्किन का। लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं होता, ये भी बहुत बड़ा इशू है। लेकिन आज के शो में आज हम बात करेंगे कि जो स्किन ड्राई हो जाती है और हमारे जो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, ये क्या वजूहात होती हैं जिनकी वजह से हमारी स्किन के और हेयर के प्रॉब्लम्स जो है वो होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपा नईमा का तो आपने सुना होगा। जी हाँ, आपा नईमा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी मजे मजे के टोटके जो इंस्टेंट बन सके और हमारी स्किन को और हमारे बालों को हसीन और जमाल बना सके। आज हमारे शो में जी मौजूद हैं आपा नईमा। आज बात करते हैं, अक्सर आप उनको शोज में भी देखते हैं, और साथ साथ इनका यूट्यूब चैनल भी है आपा नईमा टोटके, और उनको आपने सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको बहुत आसान रेमेडीज आपको वहां से मिल जाएंगी। आइए वेलकम करते हैं आपा नईमा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अंबर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्टली तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया और लोगों को आगाही देने के लिए
ये था कि मेरा तो मिशन यही है कि मैं लोगों को नेचर के करीब लेके आऊं और लोगों को नेचुरल रेमेडीज दूं। तो इसलिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे इस नेचर के तरीके से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, मोस्ट वेलकम। आपका शुक्रिया हमारा शो ज्वाइन करने के लिए, इसीलिए तो आपको बुलाया है ताकि जो आवाम, जो बेचारी बच्चियां और इवन के जो मेल हजरात हैं, जो हमारे मर्द हजरात हैं, वो बहुत परेशान हैं, उनके बाल बोल गिर रहे हैं, ड्राइनेस हो जाती है। हम औरतों के बारे में तो बात करते हैं ना, स्किन पे ये लगा लें वो लगा लें, हमारे मर्द हजरात भी बहुत परेशान है, इसलिए आपको हमने अपने शो पे इन्वाइट किया है। सबसे पहले जी अरफान अम्मा हमें ये बताएं कि जो स्किन ड्राई क्यों हो जाती है? मैं बताती हूँ कि जिस तरह अभी हम इस वेदर की अगर बात करें ना, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं सिर्फ लेडीज पे बात ही नहीं करती, मैं जेंट्स और लेडीज, मैं सब पे बात करती हूँ कि देखिए खूबसूरत नजर आना सबका हक है, और अच्छी स्किन, अच्छे बाल जहाँ लेडीज को चाहिए वहाँ मर्दों को भी चाहिए, वहाँ बच्चों को भी चाहिए, क्योंकि आजकल के बढ़ते हुए मसाइल जो हैं, जिस तरह के एक आप पहले मैं इस पे बात करूंगी कि हम चाहे बच्चे हैं, हम बड़े हैं, हम कोई भी, हमने अपनी हेल्थ को जो है ना वो प्रोसेस में डाल दिया, ये प्रोसेस फूड खा के। तो ये था कि इसकी वजह से चाहे वो बच्चे बड़े कोई भी हैं, सारे के सारे ही इस क्या कहते हैं कि इस कॉज बन रहे हैं इन बीमारियों का, कि बाल भी गिर रहे हैं, स्किन भी ड्राई हो रही है। अब हम बात करते हैं स्किन ड्राई क्यों होती है। अगर स्किन ड्राई होती है तो साथ में हमारे बाल क्यों ड्राई होते हैं। तो अगर मैं इस मौसम की बात करूं ना, तो इसमें होता ये है कि जैसे ही सर्दियां आती हैं, हम पानी का जो इंटेक है वो ना होने के बराबर कर देते हैं कि हमने पानी पीना नहीं है, साथ में चाय, कहवे, ग्रीन टी, कॉफी ये इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन हाँ जी ड्राई होती है। जब स्किन ड्राई होती है तो फिर हम सारा दिन एक तो हेल्दी एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर ये जब मैं सबसे मेजर जो मेरा टॉपिक होता है, जो मेजर मेरा पॉइंट होता है, वो ये होता है कि आप अपना इनटेक बढ़ाएं। कि गर्मियों में तो हम पानी पीते हैं, वही हमारा जब स्वेटिंग होती है तो उसके जरिए हमारा वो पानी निकल जाता है, लेकिन हम करते क्या है कि सर्दियां जैसे, गर्मियों की सॉरी बात करती, सर्दियां जैसे ही आती हैं हम पानी का इंटेक कम कर देते हैं। लेकिन जैसे सर्दी आती है ना, तो उसके अंदर हमारे पास अल्लाह की दी हुई बहुत बहुत अच्छी और बहुत प्यारी और बहुत हेल्दी नेमतें हैं हमारे पास। हम गाजर का जूस ले सकते हैं, हम मौसमी का जूस ले सकते हैं, हम मौसमी खा सकते हैं। मैं जूस की तो बात ही नहीं करती, जूस हेल्थ के लिए मैं इतना अच्छा नहीं समझती, फाइबर के साथ आपको खाना चाहिए। तो उससे ये कि हमारी स्किन ड्राई होती है। मेन काज जो है हमारा वो ये है कि हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, हम चाय और कॉफी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से स्किन ड्राई होती है। एक लिमिट तक हर चीज सिर्फ एक पानी ऐसी चीज है, एक ऐसी नेमत है अल्लाह ताला की कि जिसको हर तबका अफोर्ड कर सकता है। तो मेरा मशवरा सबको ये है आपके प्लेटफॉर्म के जरिए कि पानी जो है एक ऐसी न्यूट्रल चीज अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है कि वो बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनमें लोग पानी को तरसते हैं, और अल्लाह ताला ने हमारे पास खजाने दिए हुए हैं पानी के। तो आप पानी ही अगर नॉर्मल अगर आप 8 गिलास पानी पीते हैं, आप 8 से 12 कर दें, मैं कहती हूँ आप लोगों को किसी लोशन की, किसी मॉइस्चराइजर की, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। और जहां फिर हम बात करेंगे स्किन के ड्राई होने की, जहां स्किन ड्राई होती है, स्किन फ्लेकी स्किन हो जाती है हमारी, तो दूसरी चीज ये होती है कि हमारे फिर बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं।